Welcome back to my YouTube channel Civil Services and Aspiration. So in this video we are going to discuss chapter 2nd of class 9th polity, that is constitutional design. So let us firstly read about that what we are going to study in this chapter. So we have noted in the previous chapter that in democracy the rulers are not free to do what they like. And let me tell you that we have already made chapter 1 of class 9th polity. If you want to see, you can just go to the channel. So in that chapter we have discussed about democracy, that rulers are not free to do what they like. रूलर्स हर वो चीज नहीं कर सकते थे जो वो चाहते थे. देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो. कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए थे, रेगुलेशंस बनाई गई थी जिसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट को और साथ ही साथ जो कॉमन पीपल थे उन्हें फॉलो करते थे. ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. और उन सभी रूल्स को अगर एक साथ लिख दे तो उसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन. एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन. तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ही ज्यादा सुप्रीम लॉ है फॉर द कंट्री, और द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है कि सिटीजन्स को कितने राइट मिलने चाहिए, क्या क्या राइट्स होने चाहिए, गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है और गवर्नमेंट को कैसे फंक्शन करना चाहिए. सो इन दिस चैप्टर वी आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी, दैट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, how are the constitution drawn up, who designed them, and in what way, what are the values, means about all these we are going to study this chapter. And one recent instance of designing constitution for a democratic state is that of South Africa. We begin this chapter by looking at what happened there and how the South Africans went about this task of designing their constitution. So in the beginning we are going to start with the South African constitution, and then we turn how the Indian constitution was made, what its foundational values are, and how it provide a good framework for the conduct of citizens' life and that of the government. So this is all about the overview of the chapter, that what we are going to study in this chapter. So the first topic is democratic constitution in South Africa. As I have told you, firstly we will read about South Africa. So here is a statement given by Nelson Mandela that I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. So this was the Nelson Mandela being tried for treason by white South African government. So basically जो नेल्सन मंडेला थे वो अफ्रीका से थे, फ्रॉम अ ब्लैक कम्युनिटी, वाइल द जो वाइट कम्युनिटी थी साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट थी जो वहाँ पर वो वाइट कम्युनिटी से थी जो डोमिनेट करते थे ब्लैक कम्युनिटीज को. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. तो नेल्सन मंडेला और उसके साथ नेल्सन मंडेला और उनके साथ 7 और भी लीडर्स थे जिन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया था 1964 में. किस लिए? बिकॉज दे अपोज द अपार्थेड रिजाइम इन द कंट्री. सो ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 ईयर इन साउथ अफ्रीका. मतलब उन्होंने 28 साल अपनी लाइफ के एक प्रिजन में काटे साउथ अफ्रीका में, विच वॉज द डेयर्डेड prison of Africa, that is Robben Island. So now let us study what is apartheid and the struggle against apartheid. So apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. तो apartheid word का use रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में किया जाता है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ अ पर्सन एंड विच इज यूनिक टू साउथ अफ्रीका.
द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में ये सिस्टम यूरोपियंस ने इम्पोज किया था, यूरोपियंस वहां पर लाए थे ये सिस्टम। ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्सेस। और 17 और 18 सेंचुरी में जो यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था अफ्रीका को, उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था अफ्रीका को। सेम इसी तरीके से इंडिया को भी उन्होंने ऑक्यूपाई किया था। बट अनलाइक इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। तो हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं था, जबकि साउथ अफ्रीका में काफी ज्यादा लार्ज नंबर में जो व्हाइट्स थे, व्हाइट पीपल, वो वहां जाकर सेटल हो गए अफ्रीका में और लोकल रूलर्स बन गए। The system apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. तो उन्होंने इस सिस्टम के द्वारा लोगों को डिवाइड कर दिया दो पार्टीशन में, दो बेसिस पे डिवाइड कर दिया ऑन द कलर, स्किन कलर। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। जो मतलब ओरिजिनली साउथ अफ्रीकन पीपल थे वो ब्लैक थे एंड दे मेड अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 3/4 थी एंड वर कॉल्ड एज ब्लैक, उन्हें ब्लैक बोला जाता था। बिसाइड दीज टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस हु वर कॉल्ड कलर्ड एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। वहां पर एक ग्रुप तो था ब्लैक्स का और जो दूसरा ग्रुप था जिसमें मिक्स्ड रेसेस के पीपल थे उन्हें कलर्ड बोला जाता था और उसमें इन्वॉल्व थे इंडिया से माइग्रेटेड पीपल भी। So the white rulers treated all non-white as inferiors. जितने भी white rulers थे वो non-whites को यानी कि blacks को inferior मानते थे, inferior मानते थे। The non-whites did not have voting right. जो blacks थे मतलब non-white, उन्हें वोटिंग का कोई राइट नहीं था। The apartheid system was particularly oppressive for the black. जो apartheid system था ये particularly बहुत ही ज्यादा oppressive था for the blacks. And they were forbidden from living in white area. उन्हें white areas में भी नहीं रहना दिया जाता था। They could work in white area only if they had a permit. अगर उनके पास परमिट है तभी वो white area में काम कर सकते थे, अदरवाइज नहीं। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल, public toilets, means all the public transportation, public places were all separate for blacks and white. मतलब black के लिए अलग जगह थी और whites के लिए अलग जगह थी। This was called segregation और इस division को बोला जाता है segregation. They could not even visit the churches where the white worship. जहाँ पर white worship करते थे, पूजा करते थे अपनी, वहाँ पर black नहीं जा सकते थे। Black could not form association or protest against the terrible treatment और ना ही black protest कर सकते थे against this treatment. Since 1950 the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. तो 1950 से जितने भी black थे, कलर्ड थे और इंडियंस थे, उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई शुरू की। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक करी, मार्च किया। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। और वहां पर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था विच इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस which supported them and against the policies of this segregation, and this include many workers union and the communist party. Many sensitive whites also joined the ANC. मतलब कुछ ऐसे sensitive whites भी थे, white people भी थे जो apartheid system को अपोज करते थे and played a leading role in this struggle और उन्होंने ही lead किया। Several countries denounce apartheid as unjust and racist, means almost सबने अपोज किया उस सिस्टम को, but the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of blacks and colored. लेकिन जो white थे उन्होंने लोगों को मार दिया, टॉर्चर किया, डिटेन कर दिया against, as it was against their government, that's why they dominated the black, colored and the Indians by this. Now let's see towards a new constitution. So as protest and struggle against apartheid has increased, the government realized that they could no longer keep the black under their rule through repression.
तो इतना ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, तो जो वाइट गवर्नमेंट थी उसे भी रियलाइज़ होने लगा कि अब हम ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे through this repression policy against the black. So the white regime changed its policies. उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली. Discriminatory laws were repealed. Ban on political parties पे बैन लगा दिया. Restriction on the media were lifted. जो restriction लगाई हुई थी मीडिया पर वो भी हटा दी. And after 28 years of imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as a free man. And finally, at the midnight of 26 April 1994, the national flag of the Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. तो जब नेल्सन मंडेला जी 28 इयर्स के बाद बाहर आए तो उन सब ने मिलकर एक न्यू नेशनल फ्लैग को अनफ्लर किया एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, which was a newborn of democracy in the world, and the apartheid government came to end. और जो apartheid government थी वो खत्म हो गई, paving to way for the formation of multiracial government. So here is the question that how did this come about? So let us hear Nelson Mandela, the first president of the New South Africa, on this extraordinary transition. So let's see that what Nelson Mandela said after becoming a president of New South Africa. So he said that historical enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness, that they cherish, that faith in human being is the cornerstone of our democracy. So after the emergence of new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities. मतलब जब न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई साउथ अफ्रीका में तो जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि हमें वाइट्स को फॉरगिव कर देना चाहिए उनकी एट्रोसिटीज के लिए. दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर. उन्होंने वो सब इसलिए किया क्योंकि वो पावर में थे. They said, let us build a new South Africa based on equality of all races and man and woman, on democratic values, social justice and human right. Means अगर हम दोबारा से एक नए साउथ अफ्रीका का कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें सब इक्वल हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो, सोशल जस्टिस हो और ह्यूमंस को राइट दिया जाए. द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड the party that ruled through operations and brutal killing, and the party led the freedom struggle set together to draw up common constitution. सब मिलकर एक constitution बनाया, and after the 2 years of discussion and debate they come out with one of the finest constitutions in the world has ever had. 2 सालों के discussion और debate के बाद उन्होंने एक सबसे ज़्यादा finest constitution बनाया पूरे world में. This constitution gave to its citizens the most extensive rights available in the country. सबसे ज़्यादा जितने भी country में rights थे उससे ज़्यादा rights दिए लोगों को. Together they decide that in the search for a solution to the problem, nobody should be excluded, no one should be treated as demon. They agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. उन्हें वो सब भूल जाना चाहिए पिछली बातों को और एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए हर चीज का और हर किसी को रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए. द प्रीएम्बल ऑफ द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप द स्पिरिट. और जो प्रीएम्बल था साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का वो इन सभी बातों को सम अप करता है. द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स all over the world, a state denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one, is now seen as a model of democracy. जो स्टेट था साउथ अफ्रीका था, जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन था उसने अलग अलग कंट्रीज को, डेमोक्रेट्स कंट्रीज को इंस्पायर किया वर्ल्ड में. और जो स्टेट था 1994 में
जो अनडेमोक्रेटिक था is now seen as a model of democracy. What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together to transform bitter experience into the binding glue of a rainbow nation. और जो ये possible हो पाया एक अनडेमोक्रेटिक वन से मॉडल बन जाना डेमोक्रेसी का, विच इज अ वेरी ग्रेट चेंज. इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, दैट उन्होंने एक साथ काम किया. जितने भी उनके पिछली कड़वाहट भरे एक्सपीरियंस थे उन्होंने एक अच्छे रेनबो की तरह निखारा. स्पीकिंग ऑन द अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सेड दैट the Constitution of South Africa speaks of both the past and the future. On the one hand, it is a solemn pact in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past, but it is more than that. It is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people, a country which is the fullest sense belong to all of us, black and white, women and man, means for all. So now let us see that why do we need a constitution? Constitution की ज़रूरत क्यों है? So the South African example is a good way to understand that why we need a constitution and what do constitution do. तो साउथ अफ्रीका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए इस बात को कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है. सो द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टुगेदर टू लिव टुगेदर एज इक्वल. जो ऑप्रेसर है, जो मतलब लोगों को ऑप्रेस करता है, और जो ऑप्रेस्ड है, जो उनसे ऑप्रेस्ड है, न्यू डेमोक्रेसी में वो एक साथ रहना चाहते हैं एज इक्वल. इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर दैम टू ट्रस्ट ईच अदर. और उन सभी के लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत आसान हो कि एक दूसरे पे जल्दी से ट्रस्ट कर पाए. दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट. द ब्लैक मेजॉरिटी वॉज नीड टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज. मतलब वो चाहते थे कि उनका इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो, जैसा वो चाहे उस तरीके से काम हो. और जो ब्लैक मेजॉरिटी थी वो ये चाहती थी कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से बिल्कुल भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए. They wanted substantial social and economic rights. उन्हें social और economic दोनों types के rights चाहिए थे. The white minority was need to protect its privileges and property. और जो white minority थी वो भी अपना privileges और property protect करना चाह रही थी. After long negotiation, both parties agreed to a compromise. The white agreed to the principle of majority rule and that of one person one vote. तो बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लंबे नेगोशिएशन के बाद दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गई. और जो वाइट्स थे वो इस बात पर एग्री हो गए कि मेजॉरिटी रूल चलेगा और वन पर्सन वन वोट रहेगा. दे ऑल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट फॉर द पुअर एंड द वर्कर. और वो इस बात पर भी एग्री हो गए कि जो पुअर्स हैं या फिर वर्कर्स हैं उन्हें भी बेसिक राइट दिए जाए. The blacks agreed that majority rule would not be absolute. They agreed that the majority would not take away the property of the white minority. और इस चीज पर एग्री किया गया कि जो white majority जो मेजॉरिटी है यानी कि ब्लैक पीपल हैं वो वाइट माइनॉरिटी के प्रॉपर्टी को छीन नहीं सकते. दिस कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट ईजी. और ये कॉम्प्रोमाइज करना ईजी नहीं था. हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड? Even if they manage to trust each other, what was the guarantee that this trust will not be broken in future? So these were the question arises at that time. So the only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by. तो इन सब चीजों से बचने के लिए और एक ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए ऐसा माना गया कि उन्हें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लिख देने चाहिए जो सबके ऊपर लागू हों. These rules lay down how the rulers are to be chosen in the future. उस रूल्स में ये था कि कैसे रूलर को चूज किया जाए फ्यूचर में. These rules also determine what the elected government are empowered to do. गवर्नमेंट क्या काम करेगी and what they cannot do और क्या नहीं कर सकती.
And finally, these rules decide the right of the citizen. These rules will work only if the winner cannot change them very easily. और ये रूल तभी काम करेंगे जब winner cannot change them, और ये रूल तभी अच्छे से काम कर सकते हैं जब जो भी पार्टी होगी इन द विनर वो चेंज नहीं कर सकती इन रूल्स को आसानी से. दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन्स डिड. ये था जो उन साउथ अफ्रीकन्स ने किया अपनी कंट्री में. दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल. They also agreed that these rules will be supreme. वो मान गए बेसिक रूल्स के लिए और यही रूल सुप्रीम रहेंगे और नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस. और कोई भी गवर्नमेंट इन्हें इग्नोर नहीं कर सकती. और इस सेट ऑफ बेसिक रूल्स को कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन. एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका. और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम था ये यूनिक नहीं था साउथ अफ्रीका के लिए. एवरी कंट्री हैज डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल. हर कंट्री में अलग अलग तरीके के पीपल रहते हैं. देयर रिलेशनशिप मे नॉट बीन हैव एज बैड एज दैट बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका. ऐसा हो सकता है कि इतने ज्यादा खराब रिलेशनशिप ना हो दूसरी कंट्रीज में, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट. लेकिन पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट पीपल के डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री में हो या फिर नहीं हो. मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दिस बेसिक रूल. और ज्यादातर कंट्रियों के पास ये बेसिक रूल होने चाहिए. दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट. और ये सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होने चाहिए, बट any association need to have its constitution. It could be a club in your area, a cooperative society or a political party. They all need a constitution. मतलब जहां भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है. कॉन्स्टिट्यूशन इज मेरा रूल्स, सेट ऑफ रूल्स. So thus the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all the people living together in a country. तो constitution क्या है कंट्री का? It is a set of written rules जो सभी के द्वारा accept किए जाए which are living in the same country. Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory and also relationship between the people and government. और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सुप्रीम लॉ है जो डिटरमाइन करेगा रिलेशनशिप को जितने भी पीपल यानी कि सिटीजन्स एक टेरिटरी में रह रहे हैं या फिर रिलेशनशिप हो गवर्नमेंट और पीपल के बीच में. अब कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग. तो अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या काम करता है. सो फर्स्ट, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. सबसे पहली बात जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बनाता है बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. सेकेंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन. और सेकेंडली वो स्पेसिफाई करता है क्लियरली कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी और कौन सा डिसीजन कौन लेगा और किसके पास कितनी पावर होगी. थर्डली, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट है वो मिसयूज ना करे अपनी पावर को, इस चीज के लिए उस पर लिमिट्स लगाई जाती हैं. एंड टेल अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन आर. और सिटीजन्स को उनके राइट बताती है. फोर्थली, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. एंड लास्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सप्रेस करता है कि गुड सोसाइटी बनाने के लिए पीपल की क्या एस्पिरेशन है. सो ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक. तो हर वो कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो, बट ऑल द कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. तो समझिए इस बात को कि हर कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है जरूरी नहीं है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्री है इट इज नेसेसरी टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. So after the war of independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution. तो जब अमेरिका का ग्रेट ब्रिटेन के साथ वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस का, तो उसके बाद अमेरिकन ने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. एंड आफ्टर द रेवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. उसी तरीके से जो फ्रेंच पीपल थे उन्होंने भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव किया. सिंस देन इट हैज बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल द डेमोक्रेसीज टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. और उसके बाद से
ये प्रैक्टिस, ये हैबिट हो गई कि हर डेमोक्रेसी में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। नाउ लेट्स सी द अनदर टॉपिक विच इज मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब तक हमने साउथ अफ्रीका का पढ़ा हुआ है, दूसरी कंट्रीज का देखा, अब हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। So like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. साउथ अफ्रीका की तरह ही जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे, अलग अलग सिचुएशंस थी। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ वेरी ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन इजी अफेयर। मतलब ये कितनी बड़ी कंट्री और इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो जिस कंट्री में, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट सिटीजन। और उस टाइम पे सिटीजन्स थे जो, यानी कि जो पीपल थे इंडिया के, उन्हें भी नहीं पता था वो किस कंट्री के सिटीजन्स हैं। द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। जो कंट्री थी हमारी इंडिया, वो बॉर्न हुई थ्रू द पार्टीशन, पार्टीशन से उसकी उत्पत्ति हुई और वो पार्टीशन ऑन द रिलीजियस डिफरेंसेस पे था। दिस वॉज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और दोनों साइड के पीपल्स के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence। और जो पार्टीशन के टाइम में जितना वायलेंस हुआ उसमें दोनों तरफ से 10 लाख लोग मारे गए थे। There was another problem। और उसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी कि द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक चीज और पैदा कर दी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन पर छोड़ दिया कि तुम चाहे इंडिया के साथ मिलो या पाकिस्तान के साथ मिलो या फिर तुम अकेले अपने अलग कंट्री बनाना चाहते हो। वो चीज विच क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर द both countries and the princely states। The merger of princely states was a difficult and uncertain task। जो मर्जर था प्रिंसली स्टेट्स का इंडिया में मिक्स करने के लिए वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। When the constitution was being written, the future of our country did not look as secure as it does today। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उस टाइम जो हमारा फ्यूचर था वो इतना सिक्योर नहीं था जितना हमें आज देखने को मिलता है। The makers of the constitution had anxieties about the present and the future of our country। और जितने भी मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में थे अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ आवर country। Means it was a very difficult task for making the constitution for the country to be worked for several years। And let's see the path to constitution। So despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of the Indian constitution। सारी difficulties को अगर एक साइड कर दे तो एक बहुत बड़ा advantage था हमारे पास कि unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what a democratic India should look like। मतलब इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन को, वो इतना ज्यादा कंसेंसस क्रिएट नहीं करना पड़ा जैसा कि साउथ अफ्रीका में हुआ था। Much of this consensus had evolved during the freedom struggle। Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule। जो हमारा नेशनल मूवमेंट था वो सिर्फ एक स्ट्रगल नहीं था फॉरेन रूल के अगेंस्ट, बल्कि इट वाज अ स्ट्रगल टू रिजुविनेट आर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। बल्कि हमें अपनी कंट्री को प्रोग्रेस दिलाना था, डेवलपमेंट करनी थी और साथ ही साथ सोसाइटी में और पॉलिटिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन करना था। There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। और लोगों के ओपिनियन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था कि फ्रीडम स्ट्रगल के बाद इंडिया को कौन सा पाथ चूज करना चाहिए आफ्टर इंडिपेंडेंस। सच डिफरेंस एग्जिस्ट इवन टुडे। और आज भी इस तरीके का डिफरेंस देखने को मिलता है। येट सम बेसिक आइडियाज हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। लेकिन ये है कि कुछ बेसिक आइडियाज थे जिन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया बाय एवरीवन। So as far back as 1928 में मोतीलाल नेहरू and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू
मीन्स द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, और उनके साथ 8 अदर कांग्रेस की लीडर थी. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया. And in 1931, a resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. और 1931 में रेजोल्यूशन लिया गया कराची सेशन में, इंडियन कांग्रेस का हुआ था जो, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखना चाहिए. बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ, उसमें क्या क्या ऐड किया गया. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स एवरीवन हैज राइट टू वोट, right to freedom and equality, and to protect the rights of minority in the constitution of independent India. साथ के साथ मतलब minorities के right को भी ध्यान में दिया गया. Thus some basic values were accepted by all leaders much before the constituent assembly met to deliberate on the constitution. और जो ये basic rule थे, it was accepted by all the leaders. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पहले काफ़ी लीडर्स ने एक्सेप्ट कर लिया था. द फैमिलैरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल ऑल्सो हेल्प डेवलप अ एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन. और जो फैमिलैरिटी थी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉलोनियल रूल में ही, उन्होंने एग्रीमेंट डेवलप कर दिया था इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के लिए. द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स नॉट ओनली टू फ्यू. ऑन दैट बेसिस, और जो ब्रिटिशर्स के रूल में जो वोटिंग राइट था वो कुछ को दिया गया था. एंड ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर. तो उन्होंने कम लोगों को वोटिंग राइट दिया, इस वजह से जो लेजिस्लेचर था वो बहुत ज़्यादा वीक था. इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया. तो 1937 में इलेक्शन हुए लेजिस्लेचर के लिए और मिनिस्टर्स के लिए पूरे ब्रिटिश इंडिया में. These were not fully democratic government. उस टाइम पे ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी. But the experience gained by Indian in the working of the legislative institution proved to be very useful for the country in setting up its own institution. लेकिन जो ये एक्सपीरियंस गेन किया इंडियंस ने इस लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन में काम करके, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा इंस्टीट्यूशन को, और उन्हें कैसे काम किया जाए उसको लेकर. That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from the colonial laws like the Government of India Act 1935. तो इसी वजह से बहुत सारे ऐसे एक्ट थे जिनमें से कुछ कुछ पार्ट इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले because they were very useful. Years of thinking and deliberations on the framework of the Constitution had another benefit. और जो इतने साल की थिंकिंग थी, डेलिब्रेशन था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पे, उसका एक और फ़ायदा हुआ कि आर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज बट ऑन आर ओन टर्म्स. कि लोगों को, जो लीडर्स थे, उन्हें कॉन्फिडेंस मिला कि वो दूसरी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ सीखे, लेकिन उन्हें अपने तरीके से उन्हें इम्प्लीमेंट करें. मैनी ऑफ आर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. लीडर्स थे बहुत सारे जो इंस्पायर हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन से. द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से. बिल ऑफ राइट्स फ्रॉम द यूएसए एंड द सोशलिस्ट रिवोल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. और जो रशिया का सोशलिस्ट रेवोल्यूशन था, उससे इंडियंस में ये थिंकिंग आई कि उन्हें सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी रखनी चाहिए. Yet they were not simply imitating what others had done. लेकिन ये पॉसिबल नहीं था कि जैसा दूसरों ने किया उसे हम भी एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर दें. At each step they were questioning whether these things suited our country. हर एक स्टेप, हर एक एक्ट को बनाने के टाइम पे ये चीज़ें सोची जा रही थी कि क्या ये हमारी कंट्री के लिए सूटेबल रहेगा. एंड ऑल दीज फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और यही सब फैक्टर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में काम आए. सो नाउ लेट्स सी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. हु देन वर द मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कौन थे, कहाँ से थे, क्या थे जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. You will find here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making the constitution. आप देखने को मिलेगा कि कौन कौन थे जिन्होंने इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया.
The drafting of the document called the Constitution was done by the Assembly of Elected Representative. जो ड्राफ्ट था डॉक्यूमेंट का, उसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में एक असेंबली थी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला गया. And the elections of the constituent assemblies were held in July 1946. और कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन होगा उसका इलेक्शन हुआ था जुलाई 1946 में. इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946 और जो पहली मीटिंग थी वो दिसंबर 1946 में हुई. सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान. और उसके बाद जो कंट्री थी वो इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गई. The Constituent Assembly was also divided into Constituent Assembly of India and that of Pakistan. और जो Constituent Assembly थी वो भी बट गई, उसका भी पार्टीशन हो गया between India and Pakistan. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. और जो Constituent Assembly थी इंडिया की उसमें 299 मेंबर्स थे. द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949. और जो असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 और इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. और इफेक्ट में ये कब से आया? 26 जनवरी 1950. सो बी रिमेंबर दिस पॉइंट दैट it was adopted on 26 November 1949 but came into effect on 26 January 1950. And to mark this day, we celebrate January 26 as Republic Day every year. और इसी दिन को मार्क करने के लिए हम every year 26 जनवरी को Republic Day मनाते हैं. So, here is a question that why should we accept the constitution made by this assembly more than 6 decades ago? Means 60 years हो गए constitution को बने हुए, तो अब भी हम इसे क्यों accept करें? We have already noted one reason above. हमने अभी ऊपर भी एक reason देखा था कि जो constitution does not reflect the views of its member alone. क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सिर्फ एक पर्सन या कुछ मेंबर्स के व्यूज नहीं है अकेले. इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कॉन्सेंसस ऑफ इट्स टाइम. Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not acceptable to all major social groups और political parties. बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने दोबारा से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्योंकि जो उसमें रूल्स लिखे गए थे was not accepted by the majority. In some other countries, the constitution exists as a mere piece of paper. और कुछ कंट्री में तो constitution as a piece of paper समझा जाता है. It does not actually follows anyone. No one actually follows it. The experience of our constitution is different. और जो हमारे constitution का experience था वो बहुत ज़्यादा difference था. Several groups have questioned some provisions of the constitution, but no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. छोटे छोटे ग्रुप ने तो कई बार क्वेश्चन किया कि हम क्यों एक्सेप्ट करें, बट द मेजॉरिटी जो लार्ज सोशल ग्रुप है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसने अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं किया. दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन. और ये बहुत ही एक अच्छी और अनयूजुअल अचीवमेंट है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. एंड द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. और दूसरा रीज़न ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कुछ मेंबर्स से नहीं थी बल्कि उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स थे फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट द टाइम. उस टाइम पे एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था. सो द कॉन्स्टिट्यूएंट कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. हालांकि उस टाइम सारे पीपल ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट it was elected mainly by the members of the existing provincial legislature that we mentioned above. This ensured a fair geographical share of members from all the region of the country. और इससे इंश्योर हुआ था कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से अलग अलग रीजन से कंट्री के मेंबर्स लिए गए थे. द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस. और जो असेंबली थी वो डोमिनेट की गई थी बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि उसी पार्टी के लोग ज़्यादा थे.
द पार्टी दैट लेड इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, जिसने इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल हेड किया था. बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियन. लेकिन कांग्रेस ने खुद अपने आप में अपनी पार्टी में बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स और ओपिनियंस लिए थे. द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस. बहुत सारे ऐसे मेंबर भी थे असेंबली में जिन्होंने कांग्रेस के साथ एक्सेप्ट नहीं किया. इन सोशल टर्म्स टू, द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशंस. मतलब जो असेंबली थी उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के, ग्रुप के, कास्ट के, क्लास के, रिलीजन के, अलग अलग टाइप्स के लोग थे. even if the constituent Even if the Constituent Assembly was elected by universal adult franchise, its composition would have been different. हालांकि अगर Constituent Assembly में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा मेंबर्स इलेक्ट किए गए होते तो शायद कॉम्पोजिशन थोड़ा डिफरेंट होता. एंड फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव्स सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन. हालांकि जितने भी मैनर, जिस भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वर्क किया गया वो बहुत ही ज़्यादा सैंक्टिटी थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन, कंसेंशुअल मैनर. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम किया. फर्स्ट क्या किया उन्होंने, किस तरीके से काम किया कि फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन इट. मतलब कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स लिए गए, फिर उन पे डिसीजन हुआ और एग्री किया गया सबके द्वारा. देन अ ड्राफ्टेड कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन. उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्हें ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ताकि वो डिस्कशन कर सकें. सेवरल राउंड्स ऑफ थोरो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय क्लॉज. उसके बाद बहुत ज़्यादा राउंड्स में डिस्कशन किया गया ऑन एवरी क्लॉज एंड मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर. उनमें से 2000 अमेंडमेंट्स को कंसीडर किया गया. द मेंबर्स डेलिबरेटेड फ्रॉम 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स. उन्होंने 114 डेज यानी कि 3 साल मेंबर्स ने डेलिब्रेशन किया. Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. एक एक शब्द जो बोला गया, एक एक डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, सबको रिकॉर्ड किया गया, सबको प्रिजर्व किया गया. These are called कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स. और इन सबको क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स. When printed, जब प्रिंट हुआ तो these debates are 12 बल्कि वॉल्यूम्स. और जब प्रिंट होके आया तो ये डिबेट्स 12 बल्कि वॉल्यूम्स निकले इनकी. These debates provide the rationale behind every provision of the Constitution. These are used to interpret the meaning of the Constitution. और ये इतना ज़्यादा बल्कि इसलिए था क्योंकि हर एक चीज़ को इंटरप्रेट किया गया था, उसका मीनिंग बताया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में. Now let's see the guiding values of the Indian Constitution. So in this book we shall study the exact provisions of the Constitution on different subjects. तो इस बुक में हम एग्जैक्ट प्रोविजंस जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग सब्जेक्ट पे. सो एट दिस स्टेज लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट. और इस स्टेज पर हम सिर्फ अभी जानेंगे कि फिलॉसफी क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन की. वी कैन डू दिस इन 2 ways. हम इसे 2 तरीके से कर सकते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम पहले सारे जितने भी लीडर्स थे उनके व्यूज़ को पढ़े. बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलॉसफी. लेकिन उससे ज़्यादा उसके इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि हम वो भी पढ़ें कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में अपनी क्या फिलॉसफी दिखाता है. दिस इज़ व्हाट द प्रीएम्बल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन डस. और ये कहलाता है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ड्रीम एंड द promise. So
Some of you may have noticed a name missing from the sketches of the makers of the constitution. आपने अभी तक जितना पढ़ा, जितना समझा, उसमें देखा होगा कि महात्मा गांधी जी का नाम नहीं आया अभी तक. एंड ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे. येट देयर वर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन. हालांकि उसमें बहुत सारे मेंबर ऐसे थे जो उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे थे. Years ago, writing in his magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the constitution to do. मतलब फिर उन्होंने 1931 में एक मैगजीन लिखी यंग इंडिया, उसमें उन्होंने बताया कि वो किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे. सो दिस इज ऑल व्हाट ही सेड, व्हाट ही राइट इन दैट मैगजीन, सो यू कैन रीड. And this dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. तो जो ड्रीम था इंडिया का इनइक्वालिटी हटाने का, उसका काम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पूरा किया कॉन्स्टिट्यूशन में. हालांकि उनकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट थी कि इनइक्वालिटीज़ को कैसे रिमूव किया जाए. ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विजन. वो he doesn't agree with the views of Mahatma Gandhi. In his concluding speech to the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. और उन्होंने जो उनकी लास्ट स्पीच थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, उसमें उन्होंने अपनी सारी भड़ास निकाल दी अगेंस्ट द महात्मा गांधी जी. So this is the speech what he said. And finally, let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of midnight on 15 अगस्त 1947. तो हम देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बहुत ही ज़्यादा फेमस स्पीच में क्या कहा गया था ऑन द मिड नाइट ऑफ 15 अगस्त 1947. So let me tell you a fact that to remember this thing that the speech which Jawaharlal Nehru gave, topic of his speech was tryst with destiny, या फिर name of his speech was with destiny. So do remember this fact, it can be asked anytime. And now let's see the philosophy of the constitution. Values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it form the foundation of India's democracy. जितनी भी वैल्यूज थी और जो गाइडेड थी फ्रीडम स्ट्रगल्स थे, वो नर्चर होके इंडियन डेमोक्रेसी में फॉर्म हुई. दीज वैल्यूज आर एम्बेडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जितनी भी वैल्यूज थी एक प्रियम्बल में लिखी गई ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सारे आर्टिकल्स को बताया गया. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज. और जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग है वो एक छोटी सी स्टेटमेंट के साथ होती है जिसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है. एंड दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. Taking inspiration from American model, most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with a preamble. मतलब अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऐसा डिसाइड किया कि वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग प्रियम्बल के साथ करेंगे. So here you can see the preamble of the United States means of America. So now let us read the preamble of our constitution very carefully and understand the meaning of each of its keyword. उस हर एक शब्द का मतलब समझते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा गया है. द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड लाइक अ पोयम ऑन डेमोक्रेसी. जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक पोयम की तरह रीड किया जाता है ऑन डेमोक्रेसी. एंड इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ट. It provides a standard to examine and evaluate any laws and actions of government to find out whether it is good or bad. It is the soul of Indian Constitution. Now let's see the preamble of India. So we can read this, that we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic
republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1942, 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So, this is the preamble of India. So, this is the preamble of. So, this is the preamble of Indian Constitution. So now let's see one by one the meaning of the words said in this preamble. So firstly, we the people of India means the constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives and not handed down to them by a king or any outside people. यानी कि जितने भी लोग रिप्रेजेंटेटिव किया था जिन्होंने लोगों का मीन्स जो पीपल ने जिनको आगे भेजा एज देयर रिप्रेजेंटेटिव उनके द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है और इसमें किसी भी किंग या कोई अदर पावर का यूज नहीं है. Second word is sovereign means the people have supreme right to make decision on internal as well as external matters. No external power can indicate the government of India. Means people के पास अपने खुद के राइट है कि वो कौन सा डिसीजन ले सकते हैं, बाहर का हो चाहे अंदर का हो, any decision. Another word is socialist means wealth is generated socially and should be shared equally by the society. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities. जो वेल्थ है सोसाइटी से जनरेट हो रही है वो इक्वली शेयर होनी चाहिए सोसाइटी में और गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी लैंड की ओनरशिप और इंडस्ट्री रिड्यूस करेगी इकोनॉमिक और सोशल inequalities. Next word is secular means citizens have complete freedom to follow any religion. कोई भी religion adopt कर सकती है but there is no official religion. कोई भी official ऐसा religion नहीं है इंडिया का. Government treat all religious belief and practices with equal respect. Next is democratic, a form of government where people enjoy equal political rights, elect their rulers and hold them accountable. Government is run according to basic rules. जो government है वो basic rules से ही चलेगी. Next word is republic means head of the state is an elected person and not a hereditary position. जो मतलब head होगा state का वो elected person ही होगा, कोई भी hereditary position नहीं है ये. Justice means citizens cannot be discriminated on the grounds of caste, religion or gender. means discrimination नहीं होगा on the basis of caste, religion या gender के basis पे. Social inequalities have to be reduced. Social inequalities खत्म होनी चाहिए and government should work for the welfare of all, especially of the disadvantaged group. Next is liberty means there are no unreasonable restriction on the citizens in what they think, how they wish to express their thought and the way they wish to follow up their thought of action. मतलब उन्हें freedom है हर चीज़ की. Next is equality means all are equal before the law. हर कोई कानून के सामने equal है. The traditional social inequalities have to be ended. जो ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए एंड द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. एंड द लास्ट वर्ड इज फ्रेटर्निटी मीन्स ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ़ वी वर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली. हम सभी को ऐसा बिहेव करना चाहिए जैसे हम एक ही फैमिली के अलग अलग मेम्बर्स हैं एंड नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर. और किसी भी पर्सन को दूसरे सिटीजन को इन्फीरियर नहीं दिखाना चाहिए. Now let's see the last topic of this chapter, that is institutional design. A constitution is not merely a statement of values and philosophy. जो constitution है वो सिर्फ एक statement नहीं है values और philosophy की. As we noted above, a constitution is mainly about embodying these values. बल्कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है ये सारी वैल्यूज़ को एम्बडी करता है इन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स. मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दिस अरेंजमेंट्स. और जो डॉक्यूमेंट है मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज
all about the is all about the arrangements. It is a very long and detailed document. ये बहुत ही बड़ा और detailed document है. Therefore, it needs to be amended quite regularly to keep it updated. इसलिए ज़रूरत है कि इसे time to time update किया जाए. Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with the people's aspiration and changes in the society. जिन्होंने Constitution को craft किया, draft किया, वो इस अकॉर्डिंग था कि जो पीपल की एस्पिरेशन और सोसाइटी में चेंज हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए. दे डिड नॉट सी एट सेक्रेट, स्टैटिक एंड ऑन अनऑल्टरेबल. और ऐसा नहीं है कि इस को स्टैटिक रहेगा या इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकते. सो दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो इसीलिए ऐसा छोड़ा गया है इसे कि इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस किए जा सके. दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. और इन चेंजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कहा गया है. द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज. इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम इट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो जब आप पहली बार अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आपको पढ़ने में. Yet the basic institutional design is not very difficult to understand. हालांकि जो institutional design है वो इतना ज़्यादा difficult नहीं है समझने के लिए. Like any constitution, the Indian Constitution lays down a procedure for choosing person to govern the country. हर constitution की तरह Indian Constitution में एक procedure दिया गया है कि कैसे choose किया जाए उस person को जो govern करेगा country को. It defines who will have how much power to take decision and which decision. और उसमें ये सब भी दिया गया है कि किसको कितनी पावर मिलेगी और कोई डिसीजन कौन लेगा. And it puts limit to what the government can do by providing some rights to the citizens that cannot be violated. और उसने ऐसी लिमिट्स भी लगाई हैं गवर्नमेंट पे ताकि वो मिसयूज ना कर सके किसी भी पावर का. The remaining 3 chapter in this book are about these 3 aspect of the working of the constitution. जो अगले 3 चैप्टर हैं वो इसी बारे में है. And we shall look at some key institutional provisions in each chapter and understand how they work in democratic politics. But this textbook will not cover all the salient features of institutional design in the Indian Constitution. Some other aspects will be covered in your textbook next year. Means सारी चीज़ें इस बुक में ही कवर नहीं है, आपको आगे भी बुक पढ़नी पड़ेंगी और भी ज़्यादा डिटेल में जानना पड़ेगा. So here the chapter ends, and guys, thank you for watching our video, and if you like it, please do like, share and subscribe to our channel, and you can also give more suggestions regarding any video.